محمود قریشی صاحب کے. تیرے آندے کھڑاک بڑے ہوں گے, تیرے آندے کھڑاک بڑے ہوں گے, مسجد مایا ہون آن گے, ہنسی ملیں گے تے ویری گھبران گے, ہنسی ملیں گے. تشریف کیا تشریف پڑھا, میں معافی چاہتا ہوں, تشریف بہت شکریہ. بڑا معنی خیز گیت گنگنا رہے ہیں جنید میاں. جب سے یہ امریکہ کا فقید المثال دورہ کر کے ہم لوٹے ہیں, اس وقت سے ہمارے منہ سے یہی فکرہ بار بار نکل رہا ہے, ہسی ملیں گے تے ویری گھبران گے, ہسی ملیں گے تے ویری گھبران گے, مزے تے مایا ہنان گے. یہ ملکہ ترنم نور جہان نے ویشی گجر میں کئی سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب ہسی ملیں گے بات ہو رہی ہے ہماری اور ٹرمپ کی, کہ جب ہم ملیں گے تو ویری گھبران گے. انڈیا کی طرف اشارہ کیا ہے. ملکہ ترنم نور جہان بڑی دور اندیش عورت تھی. سر جی ویری گھبران کے بھی لکھنا ہے انٹرویو چ؟ ارے یہ تو شے سرخی ہے ہمارے انٹرویو کی, ویری گھبران گے. سر جی میڈم نے ویسے کیا گھبران گے؟ ہاں تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں, گھبران گے. نہیں گھبران گے. ہاں بھائی گھبران گے. اچھا شاہ جی, اس سے پہلے کہ انٹرویو کو آگے بڑھائیں, آپ نے فرمایا کامیاب دورہ تھا, فقید المثال دورہ تھا. میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ کامیاب دورے کی تصدیقی سند کون جاری کرتا ہے؟ جنید میاں, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں, آپ کے سامنے رام روسٹ, چرخا, سجی, کچومر سلاد, روغنی نان, کلونجی نان, میووں بھرا گاجروں کا حلوہ پڑا ہو, اور آپ پوچھ رہے ہوں کہ کیا کیا پکا ہے. ارے بھائی, یہ جو کامیابی ہے یہ تو ہر چہرے پہ عیاں ہے. جس طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھیں گے آپ کو اس دورے کی کامیابیاں اور کامرانیاں نظر آئیں گی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی سند کون جاری کرتا ہے؟ انٹرمیڈیٹ بورڈ کو لے دیا چلنے. بھائی اس سے کم سند کیا ہو سکتی ہے کہ پورے ایشیا میں شور پڑ گیا ہے, بلکہ پوری دنیا میں شور پڑ گیا ہے کہ یہ کون مل کے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ہوش ہی نہیں آ رہی, کیونکہ یہ دورہ فقید المثال تھا. کیا کہنے, بدل جاؤ تب کمال تھا, جس کا ہر لمحہ لازوال تھا, کیونکہ شاہ محمود جو نال تھا. ماضی میں یہ محض ایک خیال تھا, اسی لیے ناقدین کا برا حال تھا, زبانیں گنگ اور چہرہ لال تھا, کیونکہ ہم نے وہاں جلسے میں کر دکھایا جھولے لال تھا. حالانکہ جنید میاں پیش نظر نہ کوئی ایڈ اور نہ کوئی مال تھا. کیا کہنے. شاہ جی آپ کی خارجہ پالیسی نہ ہوتی تو یہ سب محال تھا. اے منڈا ذرا مینوں پھڑانا, میں دا متھا چومنا ہے. جی اس کا ماتھا چومنے کے لیے آپ کو کیف پکڑنا پڑے گا. جس طرح بھی ہے دیکھیے, اس لڑکے نے باقاعدہ بات کا گودا بیان کیا. کیا بیان کر دیا؟ گودا, گودا یعنی جسٹ, جسٹ. سر اسے اردو میں نہیں پتا چل رہا, آپ انگلش میں بتا رہے ہیں. بھائی گودا اصل بات تواڈے محلے چ مک کہندے نے, جڑی تسی جنج نہیں کٹتے اودی گل کر رہے ہاں, جڑی کافی دیر بعد پھڑک کے پیالے تو باہر ڈگ پیندی ہے. سمجھ آ گئی. وہ تو سمجھ آئیے جو باہر ڈگ پئی ہے. بھائی خارجہ پالیسی تو ہم نے ایسی وضع کی کہ ہمیں دیکھتے ہی ٹرمپ کا منہ خوشی سے براؤن ہو گیا. یہ خوشی سے لال ہوتا ہے. جدا پہلے ہی لال ہوئے ہوتا پھر براؤن ہوتا ہے. جنید میاں جب ہم نے اس سے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھوں کی حدت بتا رہی تھی کہ اس کے جذبات میں کتنی شدت ہے. لیکن شاہ جی آپ کو ہاتھوں کی حدت کا کیا پتا, وہ تو عمران خان صاحب سے ہاتھ ملا کے اندر چلے گئے تھے, آپ سے تو ہاتھ ہی نہیں ملایا, ہم نے خود ٹیلی ویژن پہ دیکھا.
آپ کے گھر ٹی وی قسطوں والا ہے؟ جی اس کی کوئی قسط شارٹ تو نہیں ہے؟ ایک سر. بس پھر اسی لیے وہ ایک سین بھی مس کرتا ہے. ان لوگوں سے پوچھو آپ کے ٹی وی پہ تو آ رہی ہوں گی. نہیں شاہ جی کتنے وہ تو قسطاں دا میرا چوری دا ہے. ہمارے ساتھ تو صرف اس نے ہاتھ ہی نہیں ملایا، معانقہ بھی کیا. شاہ جی معانقہ کہیں لکھنا ہے؟ منقہ لکھ لیتے ہو؟ نہیں جی. مونیکا لکھ لیتے ہو؟ وہ بھی نہیں جی. تیتھے لین کی آنا ہے. شاہ جی میں تاڑی محبت چاہنا میں، ویسے تو میرا اخبار بھی نہیں چھپ رہا آج کل. اتنی عام ملاقات میں بھی آپ نے اس نالائق کو بٹھایا ہوا ہے. آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں سر. جنید ہم تو باری تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم نے جہاز میں عمران کو جو جو لفظ رٹوایا تھا اس نے ہو بہو اسی طرح بات کی. گرامر کی ایک دو غلطیاں کر گیا مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے. سیکھ جائے گا سیکھ جائے گا. جی ہاں. مگر آپ نے دیکھا کہ ہم اس ملاقات میں کس طرح اپنے دشمنوں کو بچھاڑ کے آئے، پھٹے چک کے آئے ہیں اور کیل اکھاڑ کے آئے. انڈیا کو ایک بند گلی میں واڑ کے آئے ہیں اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ جمی ہوئی گرد جھاڑ کے آئے ہیں اور نریندر مودی کا تقریباً 2.5 لیٹر خون ساڑ کے آئے. ساڑ تو آپ لکھ ہی لیتے ہوں گے. ساڑھ تے زبانی یاد ہے شاہ جی. اور سب سے اہم یہ کہ ڈو مور والے کاغذات پھاڑ کے آئے ہیں اور ارینا 1 میں لمبی چوڑی تقریر جھاڑ کے آئے ہیں. کیا جی ارینا 1 والی آپ کی تقریر کچھ زیادہ ہی لمبی نہیں ہو گئی تھی؟ ارے بھائی وہ تو عمران بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہمیں اپنی تقریر مختصر کرنی پڑی، ورنہ حال میں سے لوگ کس طرح ناراضن تھے. شاہ جی ڈو مور ڈو مور ڈو مور ڈو مور. شاہ جی یہ آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی، ہم نے تو نہیں سنی. تم مت بولو تمہارا قسطوں والا ٹی وی ہے. یار آ رہی ہوں گی آوازاں صرف شاہ جی نو، جس جگہ تے حال ہے وہ سیب زدہ علاقہ ہے. ابے وہ 18ویں گریڈ کے جن اے وہ جن بوتل اچ نہیں ڈرم میں چوندا ہے. چلے شاہ جی غصہ جانے دیں. اچھا شاہ جی یہ فرمائیں کہ آپ نے وطن واپسی پہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہماری وہاں پہ امریکہ میں عزت زیادہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم کشکول ساتھ لے کے نہیں گئے تھے. تو جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی امداد کی بات کی ہی نہیں، یا آپ نے کچھ نہیں مانگا، یا آپ نے مانگا انہوں نے نہیں دیا، یا آپ نے نہیں مانگا انہوں نے دیا؟ معاملہ تھا کیا؟ یہیں سے طے کر کے گئی تھی کہ کچھ نہیں مانگنا، عزت اور غیرت مقصود ہے بس. آپ یقین کیجئے کہ یہیں عمران خان نے سب سے کہا کہ اپنے اپنے جیب میں قلم بھی رکھیے، مبادہ کہیں آٹوگراف دیتے ہوئے آپ کو کسی سے قلم بھی نہ مانگنا پڑے. بلکہ جنید اس غیور دورے کا ایک ذاتی واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جی وائٹ ہاؤس میں زہرانے پہ ہماری پلیٹ میں سے ہمارا کوفتہ نیچے گر گیا اور ریڈ کے پومپیو کی کرسی کے نیچے چلا گیا. اس نے اٹھا کے ادھر ادھر دیکھا، ہم نے نہیں مانگا چونکہ طے کر کے گئے تھے کہ نہیں مانگنا. اس نے ہمارے سامنے کھایا. ہاں ہم نے بعد میں صرف اتنا ضرور پوچھا کہ مزیدار سی. اس نے ہلکا سا سر ہلایا، ہم نے اسی پہ اتفاق کیا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ صرف عزت اور غیرت ہی نہیں بچت بھی مقصود تھی. پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم اپنے پورے وفد کے ساتھ سواریوں والے تانگے پہ سواریوں والے جہاز پہ بیٹھ کے امریکہ گیا.
पूरे वफद ने अपनी जेबों में मकई और दाने बुनवा के रखे हुए थे। पूरे रास्ते किसी ने एयर होस्टेस से एक नवाला नहीं मांगा। शाह महमूद तो चुके पहले अमेरिका पहुंच चुके थे। जी जी। इसलिए हमें किसी ने बताया कि वफद के एक रुकन ने एयर होस्टेस के लिए बेल बजा दी। खान ने खूंखार नजरों से देखा और कहा कि खबरदार कुछ मांगा तो। बेल चुके बज चुकी थी, एयर होस्टेस आई। उस रुकन ने बजाय कुछ मांगने के बात पलटा दी कि सिर्फ ये पूछना था जहाज दी टैंकी ते फुल लेना। उस खातून ने कहा जुल्फी तू ते बाहर आना जाना है, टैंकी फुल करके टुरी जाए। और आपने ये भी देखा कि पहली दफा पाकिस्तान का वजीर आजम अपने पूरे वफद के साथ 5 स्टार होटल की बजाय पाकिस्तान हाउस में ठहरा हुआ है। और वहां भी कोई पुरतायुश इंतजाम नहीं था। फर्शी बिस्तर किए हुए थे, बंदे 10 और चादरें 8। ऊपर से खान की इतनी इतनी लंबी टांगे, कदी ओनू बज रही है, कदी ओनू बज रही है। सिर्फ पाकिस्तान का पैसा बचाना मकसूद था, वरना कौन वफाकी वजीर हो के लत्ता खांदा जी। इसीलिए इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया पे ये धूम मची है कि पहली दफा पाकिस्तान का वजीर आजम अमेरिका के सदर से बराबरी की सतह पे मिलके वापस आ गया। ना कुछ लिया ना कुछ दिया। लेकिन शाह जी एक बैट का तोहफा तो लिया ना आपने। वो भी सिर्फ इसलिए लिया कि सदर ट्रंप ने खुद कहा कि ले जाओ बैट, साडे मुंडे क्रिकेट नहीं खेलते। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद, आज जो मैं टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ ना वो ये है ये है सकाफत पाकिस्तान की। बहुत पहले एक दफा सुना कि नार्वे के अंदर मुख्तलिफ कल्चर के जो है ना ताइफे, सकाफती ताइफे गए हुए थे। तो हमारे पाकिस्तान का जो कैंप था उधर कोई भी नहीं आ रहा था, सारे दूसरे कैंपों की तरफ ही देख रहे थे चीजें। मगर इधर से हमारे एक फनकार गए हुए थे ढोल बजाने वाले। जी जी। उसने जब ढोल बजाना शुरू किया ना तो सारा स्टेडियम का गोरा उसके आगे आगे खड़ा होता। अरे वाह। इसी तरह आप देखते हैं कि हमारी जो अपनी इस धरती की गेम है कबड्डी, जी, अब होली होली गोरा भी कबड्डी खेलना शुरू हो गया जी। इसी तरह आप देखें कि ये जो है हमारे मशरूबात, खास तौर पे हमारी लस्सी, हाय 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 हाय, तेरा तो यार अपना लस्सी जो निकले मक्खन दे पेड़े अरगा। तुम्हें तो अंदाजा होगा, तुम्हारा तो कई दफा जी चाहा होगा कि लस्सी चुलटबाजी ला दे। अजीजी बाबू जी छोटा बंद मक्खन नहीं लगते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि लस्सी जिਵੇਂ ਬੰਦ ਕਲਾਬਾਜੀ ਲਾਂਦਾ ਉਂਝ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। कलाबाजी लगाने को जी नहीं करता, लेकिन मेरा ये जरूर जी करता है कि पाकिस्तान दुनिया भर को लस्सी सप्लाई करे, एक्सपोर्ट करे। बहुत अच्छी सच्ची बात। बिल्कुल ठीक बात है। हज पे जाते हैं जब तो उधर सबसे ज्यादा जो मशरूब पिया जाता है वो लस्सी है। पूरी दुनिया में लस्सी बहुत तेजी से पॉपुलर होने वाला मशरूब है। हैरत अंगेज तौर पे मैं पिछले दिनों एक किसी अखबार में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जापान जो है वो पूरी दुनिया को $7 अरब की लस्सी बेच रहा है। जापान $7 अरब की लस्सी बेच रहा है। देखो ना ये हर मुल्क च मशहूर है ये लस्सी तो पूरी मडोना बनी है। ये और जापान ने आज ये काम नहीं शुरू किया, लेकिन उसकी बहरहाल एक्सपोर्ट में तेजी से हर साल इजाफा हो रहा है। लेकिन 1919 से वो ये काम कर रहा है, यानी उनकी माइयां बैठी लस्सी रड़क रही है जापानी। यार उधर मशीनें लगाई होंगी
पीनी माइयां तो उंजी नहीं अच्छी लगती हैं वो लस्सी को कैल्पस कहते हैं, या उसको जो जब 1919 से उन्होंने काम शुरू किया तो कैल्पस के नाम से वो दुनिया को ये अपना ब्रांड बेच रहे हैं लस्सी। आप ना ये ऑक्सफोर्ड और चैम्बर 2-3 बड़ी डिक्शनरीज उठा के देखें और लफ्ज लस्सी तलाश करें, तो लस्सी को आम तौर पे डिक्शनरीज में भी और हिस्ट्री में भी ये बताया जाता है कि ये बरे सगीर का मशरूब है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। लेकिन असल में तुर्क जो है ना वो इस दावे को तस्लीम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि दुनिया भर को लस्सी हमने मुतारफ करवाई थी, दुनिया भर में लस्सी तुर्कों ने। अच्छा जी। और वो बहुत, वो वाकई ना तुर्की हमारे ये में यही है कि हमारी नानी ने मुतारफ करवाई। अच्छा, तुर्की जो है ना वो इसको आयरान कहते हैं, आयरान कहते हैं तुर्की लस्सी को। और वो ना वो ये जब अर्दवान आए थे ना तो गालिबन 2013 में उन्होंने एक जलसा आम से खिताब करते हुए भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि लस्सी या आयरान को तुर्की का कौमी मशरूब करार दिलवाऊं। उससे पहले एक शराब या इस तरह का वो मशरूब है तुर्की का कौमी, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारी सकाफत से लग्गा नहीं खाते, तो हमारा जो कौमी मशरूब है वो आयरान है। और तुर्क बहुत, शाहरुख खान के बेटे का नाम भी मेरा ख्याल है लस्सी खान ही है। आयरन नहीं, आर्यान है। हाँ आर्यान, सॉरी, हल्की जी लस्सी लग गया। मैं तो बताने ये लगा था कि तुर्क जो है ना वो इस मामले में यानी आयरान के मामले में कितने जज्बाती हैं। ईरान के मामले में जज्बाती नहीं है, आयरान के मामले में जज्बाती है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले वहाँ पे आइस टी बनाने वाली एक कंपनी ने अपने टेलीविजन कमर्शियल में एक मॉडल को लिया था, जो वो मॉडल उस एड में कहता है कि मुझे आयरान या लस्सी पीने से कुकी नहीं चढ़ती, हम कहते हैं नींद आ जाती है। उसने कहा जी खुनूदगी, मुझे नींद बहुत आती है, तो मैंने अब वो आयरान छोड़ दी है, अब मैं ये आइस टी पीता हूँ। तो इस पे एक आदमी ने उस पे केस कर दिया था और उस कंपनी को बिल आखिर $70,000 अमेरिकी जुर्माना हुआ था, यानी लस्सी के खिलाफ बोलने पे। देखो यार तुसी इत्थे अल्लाह दी रहमत है, तुसी सिरे सिरे डोल लैके ते नाल दियां नु लस्सी लैन टुर जांदे। हमारे यहाँ लस्सी केस करन डई। हमारे यहाँ तो लस्सी के सबसे बड़े वकील जो है वो हमारे दिल मोह लेने वाले पंजाबी के सबसे बड़े शायर अनवर मसूद साहब हैं। इतनी लस्सी पे उन्होंने नज़में लिख छोड़ी है। मैं कहना जी क्या बात है, अनवर मसूद साहब ने वो जो चाय और लस्सी की लड़ाई कराई है, होए 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 होए, उसमें लस्सी तो इतने प्यारे अंदाज में कहती है, मैं सोनी मैं गोरी गोरी तू काली कलवट्टी। चाय को कह रही है गौरी साहब, आपने गुस्सा कर। मैं सोनी मैं गोरी गोरी तू काली कलवट्टी, मैं नींदर दा सुख सनोड़ा तू जगराते पट्टी। जिस वेले मैं चाई चाई छन्ने अंदर छलका, केड़ा सांभे मेरियां लिशकां, कौन संभाले डलका। रंग भी मेरा मक्खन वर्गा, रूप भी मेरा सुच्चा, दुध मलाई मां प्यो मेरे, मेरा असला उच्चा। जेड़ा मैनू रिड़कन बैठे उस दे वारी जावा, खड़के ढोल मधानी वाला मैं विच भंगड़े पावां। मैं कहता हूं अनवर मसूद साहब ने ईमान से लस्सी को इस तरह पेंट किया है कि लगता है लस्सी नहीं किसी फिल्म दी हीरोइन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में क्यों इतना पोटेंशियल है, वो इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, बल्कि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इत्तफाक से एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे तरह तरह की लस्सी है। और एक अंदाजे के मुताबिक सबसे ज्यादा लस्सी के इकसाम पाकिस्तान में आपको मिलती हैं। 19 इकसाम की लस्सी मिलती है, कच्ची लस्सी, पक्की लस्सी, पेड़ों वाली लस्सी, अदरक की लस्सी, मंगवी लस्सी, हाँ मंगवी लस्सी, चाटी की लस्सी, फिर चाटी की, फिर ये फ्रूट फ्लेवर्ड, हाँ फ्रूट फ्लेवर्ड लस्सियाँ की तरह लस्सी बना बना के ये ज्यादा जो बाहर के ममालक में, गोरों के ममालक में जो पाकिस्तानी होटल खुले हुए हैं, वो उधर तो उन्होंने इतनी किस्म की लस्सियां मुतारफ करा दी हैं कि गोरा बेचारा उन्होंने लस्सी पी कर टोन होया, फिर समझने शराब पींदा है। दूसरी बात ये है कि जापान और तुर्की जितनी मर्जी लस्सी बना लें,
अच्छा मैं तुम्हें ये भी बताता चलूं कि हिंदुस्तान लस्सी एक्सपोर्ट कर रहा है, अच्छा। यानी जापान $7 अरब की लस्सी एक्सपोर्ट कर रहा है और हिंदुस्तान $18 करोड़ की लस्सी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करे तो जाहिर है कि यहाँ जो लस्सी की मशहूर दुकानें हैं वो तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगी ना, लेकिन उनका आप ब्रांड नेम यूज करके तो जो पेस्चराइज्ड मिल्क बनाने वाली कंपनीज हैं उनको ये कह सकते हैं कि वो इन नामों के मतलब ब्रांड नेम्स के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और इंडियंस को तो लस्सी दे सकते हैं ना। क्योंकि देखिए असल बात ये है कि अगर हिंदुस्तान $18 करोड़ कमा सकता है तो पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है इन लस्सी की अकसाम की वजह से कि एक यानी 40 से 50 करोड़ डॉलर कमा सकता है पाकिस्तान। यार जापान को देखो ना, तुम हैरान करा दिया तुमने जापान से उनका बता के। मैं समझता हूँ कि जापानी खतौन इंजन कर दी बहुत। अच्छा जापान और तुर्की का कह रहा हूँ ना, जो मर्जी कर ले, वो हमें इसलिए भी पीछे नहीं छोड़ सकते कि वो तो सिर्फ लस्सी पीते हैं ना, हम दुनिया की वाहिद कौम हो गए जो लस्सी से सालन भी बनाते हैं, कड़ी। फिर हम दुनिया की वाहिद कौम होंगे जो लस्सी को बतौर शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं। मैं ना जी पेट मारन वास्ते भी लस्सी ते बच्चियां नु मारन वास्ते भी लस्सी मदानी नाल ही अगे लाए हुंदे। अब हम अपने हकीम गोगा साहब की तरफ जाएंगे और लस्सी के तिब्बी फवायद जानने की कोशिश करेंगे। फवायद ना दसो, अगे रखो ना दे इन्नी लस्सी करके ते हले फवायद ही पूछण। गोगा जी मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, क्या फायदे हैं? सचमुच ये जो लस्सी है ना जी, ये तो वाकई बड़ी एक अच्छी चीज है। हाँ जी। ये मैदे की गर्मी को दूर करती है और बहुत से इसके फायदे हैं। जाहिर है ये डेयरी से बनती है और हमारे यहाँ इसमें सबसे ज्यादा जो अहम चीज है ना जी, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह जब हम लोग रहते थे गुजरांवाला में, तो बेशुमार महल्ले के लोग जो है ना जी, उन्होंने भैंसें रखी होती थी और सुबह वो लस्सी बनाते थे जी। और इर्द गिर्द बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जिनके पास नाश्ते के लिए वाफर पैसे नहीं होते थे, या कह लें कि एक अच्छा नाश्ता करने के लिए या कोई खाने वाने या पावे शावे खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो लोग डोल लेके तो मुख्तलिफ घरों से आराम से लस्सी, और ये घर जो लस्सी देने वाले थे ये भी उसको बहुत अच्छा और ड्यूटी समझते थे। बाकायदा सवेरे सवेरे लस्सी बना के बांटते थे कि भाई 10-12 घरों को नाश्ते के लिए एक चीज मिल जाएगी, और वो जाके उसमें कभी नमक मिर्च डाल ली, मिर्च भी डाल लेते थे, नमक डाल के भी उसके साथ रोटी बड़ी अच्छी खा लेते थे। भाईजान कई सखी खवातीन जो हैं वो लस्सी में मक्खन भी डाल देती थी। हाँ जी, हल्का सा मक्खन भी बीच में जाने देती थी कि ये रखो तो ये एक बड़ी वाकई अजीब चीज है और बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी चीज है जो सबको मिल सकती है। वो कहते हैं जितना मर्जी पानी पा के लस्सी बना लो। जब कोई शख्स अपनी हद से तजावुज कर रहा होता है या बात बढ़ा रहा होता है तो उसको कहते हैं यार कच्ची लस्सी की तरफ बढ़ते ना जाओ। क्योंकि लस्सी में जितना मर्जी पानी डालते जाए, लस्सी ने तो आपको नहीं ना कहना, कोई आप पे केस तो नहीं ना कर देना कि मुझे पानी क्यों डाल रहे हो। सर जी लस्सी ना बताओ तुसी नाल 6 बंद 6 नहीं 12 6 तो गोगे दे नहीं। अच्छा सिर्फ ये कोई घरों में ही नहीं लस्सी बनती, आप अगर सुबह सुबह दूध दही वाली दुकान पे जाएं दही लेने के लिए या दूध लेने के लिए, तो वहां भी बकायदा जो बंदा दही बेच रहा होता है ना जी, उसने साथ एक बड़ा पित्तल का या स्टील का कुजा रखा होता है और बड़ी मदानी रखी होती है, या वो खुद वो ड्यूटी दे रहा होता है या उसने स्पेशल परे बंदा बिठाया होता है जो धड़ाधड़ साथ लस्सी भी बेच रहा होता है। लस्सी पीने वाले जो है वो एडा एडा गिलास बढ़ के लगे हुए, वाकई वो इतना बड़ा गिलास होता है, वो मुंह के साथ लगाया होता है उन्होंने, लगता ही नहीं लस्सी पी रहे हो, लगता है बिच को बच्चा डिग पिया वो देख रहे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपको मोबाइल पे अक्सर क्या रोजाना आपको ये मैसेज मिलता होगा कि होम ट्यूटर्स की सर्विसेज हासिल करें, और ये इदारे गली गली खुले हुए हैं जो आपको होम ट्यूटर प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे कटहरे में खड़ा है एक ऐसे ही इदारे का सरबराह। जी जुनैद साहब, गली में नहीं, मेरा दफ्तर तो मलक प्लाजे में है।
बड़ा प्यारा दफ्तर है, आप किसी वक्त आके देखे, आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने मुहावरतन कहा है, अगर आप लोगों को घरों में ट्यूटर्स फराहम करते हैं तो इतना तो आपको तालीम से शगफ होना चाहिए। नहीं जुनैद साहब, मैं तालीम नहीं देता, मैं तालीम देने वाला देता हूँ। मैं तो एजुकेशन का आप मुझे आड़ती कह सकते हैं। जुनैद साहब, आप तौबा कर रहे हैं। इस पाकिस्तान की मेरा ख्याल है माईशत को 80% तो आड़ती पे ही डिपेंड कर रही है। तालीम के शोबे को इससे माफ रखो। नहीं जुनैद साहब, बड़ी जरूरत है आड़ती की तालीम के शोबे में, चूंकि अक्सर आपने ये देखा कि पैसा उन लोगों के पास है जो अनपढ़ जाहिल है। वो बेचारे अपने बच्चों को गाइड ठीक नहीं कर सकते, ना ही उन बेचारों को पता होता है कि कौन सा टीचर अच्छा है या कहाँ से टीचर मिलेगा या किस तरह होम ट्यूटर जो है वो लाया जा सकता है। तो हम फिर उनकी मदद करते हैं, वो अनपढ़ वालिदैन की, चूंकि मैसेज तो हम सारे पढ़ ही लेते हैं। इनका काम पता है क्या है जी? ये किसी कंपनी से मोबाइल नंबर हासिल कर लेते हैं मैसेज भेजने के लिए लाखों की तादाद में। फिर इनके पास सैकड़ों लोग जो हैं बेरोजगार नौजवान जो इनके राब्ते में होते हैं, जो ट्यूशन पढ़ाने के ख्वाहिशमंद होते हैं बेचारे, ये उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, कहते हैं जी हम आपको मुख्तलिफ घरों में भेज देंगे। फिर जो कुछ ये करते हैं उसी पे हमने बात करने के लिए इनको यहाँ बुलाया। मैं माफी चाहता हूँ, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते, उनको प्रोवाइड करते हैं। जिनको जरूरत होती है वहां तक उनको पहुंचाते हैं। जुनैद साहब, आप देखें दोनों तरफ भला हो रहा है। एक तो वो लोग जो बेचारे नौकरी की वजह से खज्जल हो रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। एक वो अनपढ़ वालिदैन या कह लें कि घर में बेचारे अनजाने लोग जिनको पता नहीं है कि तालीम कहाँ से मिलनी है, उनको हम दुकानदार तक पहुंचा देते हैं कि यहाँ से ले ले। ब्रेक लगाओ जी लो और रुको, मेरा मतलब है। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने कहा ब्रेक लो, साथी की बात सुननी चाहिए। आपने फरमाया कि दोनों का भला हो जाता है, असल में दोनों तरफ से आपका भला हो जाता है। ट्यूटर से भी ये कमीशन लेते हैं और स्टूडेंट से भी ये कमीशन लेते हैं। नहीं तो जुनैद साहब, इसमें कौन सी बुरी बात है? ये बहुत से ऐसे बिजनेस या कारोबार हैं जहां पे दो जगह पे देना पड़ता है। जैसे आप बकरा लेने जाते हैं तो आप बकरे वाले को भी पैसे देते हैं और आके घर बकरे को भी पट्ठे देते हैं। नकद उसको दे नहीं सकते क्योंकि बकरे को मालूम नहीं होता कि पट्ठे मिलते कहां से। तुम्हारे ख्याल में उस्ताद या तालिब इल्म जो है वो बकरा है? खुदा का नाम है। मैंने मिसाल दी है, आप अब उनको उनके साथ जोड़ना ना दें। अच्छा चलो, फर्ज किया तुम ये काम करते हो और जायज तरीके से करते हो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम लोगों के पास क्या मयार है कि तुम जो लोग ट्यूटर तुम्हारे पास आते हैं उनकी तुम लियाकत या तजर्बा जांच सको और फिर उनको किसी स्टूडेंट के पास भेज सको। बताओ। नहीं, उनसे पहले पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कितना पढ़े हुए हैं, आपके पास डिग्री कौन सी है। ये तो वो डायरेक्ट भी जाके स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स को बता सकता है। नहीं, वो पता नहीं ना होता स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को कि ये बैठे कहाँ हुए हैं, इनका घर किधर है। उनको उनके घर से निकाल के स्टूडेंट्स के घर तक पहुंचाना होता है हमें। आप हमें एजुकेशन का रक्षा भी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है रक्षा साहब, ये नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा नाम रक्षा नहीं है, मेरा नाम वलीद है जी। वलीद तो इतने जुस्से वाले बंदे का नाम हो ही नहीं सकता। चले आप चौधरी वलीद कह लें, अब लगना शुरू हो गया जी। अच्छा वलीद साहब, आप ये फरमाए कि आप लोगों को जो ट्यूटर प्रोवाइड करते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में आप 90% गलत बयानी से काम लेते हैं, उनके तजर्बे के बारे में भी गलत बयानी से काम लेते हैं। नहीं जुनैद साहब, ऐसा नहीं होता। हमें जो बताया जाता है हम देख के चेक करके तो आगे भेजते हैं। यार जाने दो, ट्यूटर ने एफएससी मुश्किल से की होती है, आप कह रहे हो जी पीएचडी की हुई है। नहीं, पहले उससे बात करते हैं, कम से कम उसकी अगर नियत हो कि मैं पीएचडी कर लूंगा तो उस पे भी हम यकीन करके तो फिर उसे भेजते हैं। देखिए सारा काम तो नियत पे ही डिपेंड करता है। एक आदमी की अगर नियत है कि मैं पीएचडी कर लूंगा तो यही समझें कि वो पीएचडी है। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर हमारे साथ कोई गलत बयानी करके चला गया उधर और वहां जाके उसकी वो डिग्री नहीं निकली तो जुनैद साहब वो डायरेक्ट जाके भी तो झूठ बोल सकता है। तो फिर आप ये गलती तो उसकी है ना जी, हमारी तो नहीं। तो फिर आप किस चीज का कमीशन ले रहे हो? जुनैद साहब, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम वहां से पकड़ के तो वहां तक पहुंचाते हैं जनाब। आप हमें एजुकेशन का वेटर भी कह सकते हैं। अब आप वेटर को तो नहीं ना ये कह सकते कि ये आपने किस तरह का खाना पकाया। पकाया तो चूंकि शेफ ने होता है, उस बेचारे ने तो वहां से पकड़ के वहां तक पहुंचाया है। आप वेटर नहीं, आप एजुकेशन के प्रीडेटर है। इसका क्या मतलब होता है? प्रीडेटर का मतलब नहीं आता और
लोगों को ट्यूटर दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं खुद तो नहीं पढ़ाने जाता, कोई ऐसी बात नहीं। खुदा का खौफ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 5-6 ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਟਿਊਟਰ ਟੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਡੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਟਿਊਟਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ 100? 700 ਤੇ 700 ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਉਣਾ? 700 ਦਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਲੂਮ ਪੜਾਉਣੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਹਾਲ, ਪਾਈਆ ਕੋ ਮਾਸ਼ਰ ਤੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्यूटर खुद लब सकते हैं? इनको एक बंदा जरूर बीच में चाहिए जिसे आप एजुकेशन का डीलर भी कह सकते ओ, सर इन डीलरों में से कई डीलर्स ने तो जाली डिग्रियां भी बना के रखी होती हैं। कोई ट्यूटर आता है तो उसे देते हैं और कहते हैं कोई पूछेगा तो ये दिखा देना। ओहो, देखे डिग्री डिग्री होती है, वो 14 डिग्री हो या 40 डिग्री हो। सर इनसे एक और शिकायत ये है कि ये सारा बिजनेस ऑनलाइन करते हैं। ना ही इनका कोई दफ्तर होता है, ना ही इनका कोई ठिकाना होता है। अगर इनसे कोई शिकायत हो तो ऑफिस बंद, नंबर बंद, ये करते हैं ये लोग। एक फोन पे इनका सारा कारोबार चल रहा है। और भाईजान हम शिकायतें सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, हमारा काम हुजूर सिर्फ इतना है कि ये एक ट्यूटर है, ये एक स्टूडेंट है, हमने इनको इनके साथ मिलाना है। आप हमें एजुकेशन की लीड भी कह सकते हैं। ये इत्मीनान नहीं करते कि जो ट्यूटर कह रहा है वो ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है। ये तसल्ली करते हैं कि स्टूडेंट वाकई स्टूडेंट है। जनाब साहब एक बंदा ही चेक कर लो तो बड़ी गल। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਏ? ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ओ जनाब हमारे ऊपर किस बात का पर्चा है? एक स्टूडेंट को टीचर चाहिए, हमने तो सिर्फ ये चेक करके बताना होता है कि ये पढ़ा सकता है कि नहीं। आप हमें एजुकेशन का थर्मामीटर भी कह सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हस्बे हाल 3-4 शिकायत हैं, वो मैं कर दूं फटाफट। एक तो ये बरसात का मौसम है और तड़ातड़ बारिशें हो रही हैं, गटरों के और पानी चिकड़ों के रोने हम अक्सर रो रहे हैं जी। उसमें मैंने ये जो थोड़ा सा अंदाजा लगाया है ना या पूछगिछ की है, उसमें ये है जी कि कोई उधर आ ही नहीं रहा, सफाई सुफाई की तरफ कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा। इसलिए कि रौला तो गवर्नमेंट डाल रही है कि पानी शानी जिथे जिथे खलोता है उन्हें कड्डो या सफाई करो। इसके लिए पैसा एक नहीं कोई भी दे रहा, बगैर पैसे दे तो कोई काम करता ही नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि पहले ये असिस्टेंट कमिश्नर इलाके के या डीसी साहिबान को एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दे दिया जाता था अगर बल्दियात का ये सिस्टम नहीं होता था। इस दफा किसी को कोई एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज नहीं मिला, इसलिए सारे जो निचला तबका है वो आप उधरा हुआ है। फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, बड़ी बदबू फैल रही है और आगे तो डेंगू का भी खतरा है। डेंगू के लिए पिछले कई सालों से बड़ी फाइट हो रही है और बड़ी डाढ़ी फाइट के बाद उस पे काबू डाला जा रहा है। तो इस दफा भी अगर तवज्जो ना दी गई तो बीमारी बड़ी फैल जाएगी। इसका एक ही तरीका है कि जहाँ पे पानी खड़ा है ना, पाइप और मोटर लगा के ना, तो वासा के अफसरान के जहाँ पे घर है ना, वहाँ पे 2 दिन के लिए पानी छोड़ दिया जाए। उनको उस अजियत का एहसास हो कि जिसके घर के सामने पानी खड़ा होता है, जिसका घर पानी में डूबा होता है, उस पे बीतती क्या है। हाँ जी, ये वासा वाले नहीं कैसे काबू आते। वो बड़ा अच्छा तरीका है कि एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दें ये ब्यूरोक्रेट्स को, ये इनको खिंचे थ्रू हैं, फिर को सफाई हो, इसके लिए बजट भी दें। और अभी से ये अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है, अभी से डेंगू की तरफ भी तवज्जो दे। और खास तौर पे जो पोलियो वाला काम है ना जी, वो भी सारे लगे भी हुए हैं, उसकी तरफ भी बड़ी खास तवज्जो दे। चूंकि आगे अल्लाह ना करे अगर थोड़ा बहुत कोई सैलाब आ गया या सिचुएशन इस तरह की बन गई तो बहुत ज्यादा बीमारियां फैल जाएंगी। बड़ा डाढ़ा खतरा महसूस हो रहा है। इसकी तरफ
लाइमन तवज्जो देनी चाहिए, डेंगू की तरफ भी, पोलियो की तरफ भी, और ये सफाई सफाई की तरफ भी। और फिर ये सिर्फ गंदगी बदबू का ही मामला नहीं है, ये अब जानों की हिफाजत का भी मसला बना हुआ है। ये जो पानी खड़े हैं गली गली में, वो सेम जा के तो मकान गिर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी अंदरून शहर की तरफ भी को मकान गिरा है, जिसमें 3 बच्चे मर गए हैं और बंदे मर गए हैं। रो रो के बेचारों का चीख चीख के हशर हो रहा है घर वालों का, बाप का। इस सिचुएशन को फौरी तौर पे हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए, जिस तरह मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर वाला या कोई भी, या जो बजट है वो भी साफ कह रहे हैं लोग। वो कहते हैं जी बजट ही नहीं मिले, या करिए कि तो मेरा ऑर्डर करना तो नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको देख के तो अल्लाह वास्ते कुछ कर लें, वरना बहुत बुरी हालत हो गई हुई है, बीमारियां फैलने का ज्यादा खतरा हो गया हुआ है। अच्छा भाईजान, आपने बारिश और बरसात की बात की है, तो मैं इससे फायदा उठाते हुए फिर एक दफा ये याद दहानी करवाना चाह रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए बारिश के दिनों में इलेक्ट्रिक पोल्स के करीब मत जाए। ये इतनी वीडियोस आजकल वायरल हो रही हैं कि इतना खौफनाक काम है, उसके करीब भी मत जाए। जब बारिश हो रही है तो दूर रहें इलेक्ट्रिक। दूसरा, आजकल पाजनेट सब हाजी गए हुए हैं हज करने। पता नहीं आपके फोन का क्या हाल है, मेरे फोन पे तो जितने भी वाकफकार गए हुए हैं ना जी, या रिश्तेदार है, सबको यही बेचारों को दुख है कि वहां पे इंतजामात बहुत बुरे हैं। 4 लाख रुपया इन्होंने लिया है और वहां पे 4 कौड़ियों का काम नहीं हो रहा। जो मिली हुई हैं रिहायशें वो डबल, और खाने में भी इतनी बुरी हालत है यार। अक्सर लोग बेचारे हज पे उस वक्त जाते हैं जब दांत निकल जाते हैं। उधर सुना है मेन्यू जो है सरकारी हाजियों का, वो सारा दाल रोटी, अंडा रोटी, रोटी 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 रोटी, और साथ सालन भी कोई इतना किसी को भी अच्छा नहीं मिल रहा। बल्कि एक वीडियो तो बड़ी वायरल हुई है, हाजी बकायदा गुस्से में कह रहे हैं कि सालन में से बदबू आ रही है। इस तरह की सिचुएशन जो बनी हो तो थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी चाहिए तवज्जो भी दे। ये वो वाला काम नहीं है कि फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करें, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ये तो नालो नाल होना चाहिए। जो मिनिस्ट्री है उसको फौरन ऑर्डर करेंगे, कुछ की करें। डीजी हज है साजिद यूसुफानी साहब, वो सुबह दोपहर शाम मुझे अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से मैसेज भेजते हैं, वीडियो क्लिप्स भेजते हैं। उन वीडियो क्लिप्स को और उन मैसेजेस को देख के लगता है कि वहाँ पे हुज्जाज जो हैं हज करने नहीं गए हुए, वो किसी पिकनिक पे गए हुए हैं, और एक हाजी के पीछे कुछ 100 अफसरान हैं हज मिनिस्ट्री के जो उनका ख्याल रख रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो वीडियोज हमारे इधर चैनल पे आ रही हैं वो भी जरा देखो ना। मेरा मतलब है वहां पे हज करने गए हुए हैं जो लोग, बड़ी बड़ी दूर उनकी रिहायशें हैं। रिहायशें भी इस दफा ज्यादा दूर दी गई। वो लोग हर नमाज आके उधर खाने काबे या मस्जिद नबी में नहीं पढ़ सकते। उन लोगों ने जो नमाज पढ़नी है कमरे में, उसके लिए जगह ही कोई नहीं, ना को उनका सामान रखने के लिए जगह, ना खाना पीना चंगा। बुजुर्ग जो बेचारे गए हुए हैं उनकी बुरी हालत हुई है। बुजुर्ग ज्यादा होते हैं। इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और फौरी तौर पे जो मिनिस्ट्री है उसको निरा मीडिया पे अपनी तशहीर करने की बजाय हाजियों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तशहीर जो है वो तो खुद ही हो जाती है। जब अच्छा सिस्टम उधर चल रहा हो तो सारे हाजी आके कहते हैं वाह जी वाह, बड़ा बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो। ये अब बड़ी खोचलपुना हमारे हर बंदे ने, हर शख्स ने, हमने भी ये पकड़ लिया हुआ है कि जिसकी जो मर्जी हो ना उतना उतना पकड़ के तो चला लेते हैं, सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। मतलब मेरा जो दिल कर रहा है कि मैं इस तरह की बात करूं, मैं उसी तरह की बात कहीं से रिकॉर्ड करके तो फेंक दूंगा। लो जी जनाब देखो लोग की किड्डे बेचारे खुश ने। यार असल बात जो है वो सामने आ जाती है। इसलिए कारकर्दगी लाजमन अल्लाह ताला को हायर नायर जान के तो अपनी दिखानी चाहिए। मीडिया के सामने सिर्फ अपनी कारकर्दगी ना दिखाएं, ये अल्लाह के मेहमान है। अल्लाह ताला को अपनी कारकर्दगी दिखाएं, या अल्लाह के मेहमानों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। जी जनाब, अभी तो मैं ये सोचता हूँ कि ये गोगे बेचारे की दरखास्त मंजूर नहीं हुई इस दफा। ये भी चला जाता तो हाजियां दी रोटी तो बड़ी घट जानी सी। यार तुसी एक बारी मैंने जान दे, रोटी मैं अपनी पका के ले जाऊंगा ना। चल नाल लेके जाएगा तो फिर जहाज वाले कहेंगे वेट बढ़ गया। ये था आज का हस्बे हाल। और एक छोटी सी बात ये कि मुंह में जबान सब रखते हैं, लेकिन कमाल वो करते हैं जो संभाल कर रखते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।